हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग शुरू किए थे डीपी मुखर्जी। आज भी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, द आइडिया ऑफ डीपी मुखर्जी विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न इंडियन कल्चर। डीपी Mukherjee was very much influenced by the environment, and he wanted to understand that how the idea of the traditional culture has a relationship with modern Indian culture. अगर हम आधुनिक भारत की सभ्यता को समझना चाहते हैं, so you must understand that what was our traditional culture. The idea of modern is a derivation of the Indian traditional culture. So that means अगर आप 1947 से लेकर अभी तक की हम जितनी भी चीजें देखते हैं भारत के समाज में जो परिवर्तन हुआ है, उससे जुड़ा हुआ हमारी पास्ट जो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर है. So that means synthesis has been the dominant organizing principle of Indian culture, and that is the idea of Indian society became one of the important aspect of understanding Indian culture. जब इन्होंने मिडिल क्लास की बात करते हैं, जब मिडिल क्लास की इम्पोर्टेंस की रोल बात करेंगे तब पता चला डीपी मुखर्जी कहते हैं सो मिडिल क्लास बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आना, चैलेंज करना, मिडिल क्लास बिकेम एन इम्पोर्टेंट दो इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लास. तो डीपी मुखर्जी के आधार पर अगर इंडियन मिडिल क्लास है वो भी एक कंसोलिडेशन का पार्ट था जो ब्रिटिश रूल के साथ जुड़ा हुआ था, एंड लेटर दैट बिकेम part of a challenging force against the idea of British colonial structure. So that means the idea of reorientation, the idea of DP's word understanding of the union, the idea of the regional cultures became important idea to understand the Marxian approach. That how the idea of reorientation to tradition was an essential condition of moving forward. तो हमारे पास जो परंपरा था उसको रीओरिएंट करना और उस माध्यम से आगे बढ़ना, एंड that is why he wanted denied that he was Marxist and he claimed to be ओनली ए मार्क्सोलॉजिस्ट, क्योंकि मार्क्स की पूरी विचारधारा को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज ही वांटेड टू recreate the idea of Marx with respect to Indian tradition. So that is why he claimed as only a Marxologist, not a Marxist. तो मार्क्स की पूरी विचारधारा अगर लेते तो फिर वेस्ट की या पाश्चात्य देश की जो विचारधारा मार्क्स के साथ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेके पूरी तरह होते, बट ही वांटेड टू रीओरिएंट इट with respect to Indian tradition. The national movement was anti-intellectual, although it generated idealism and moral fervor. So that means the politics became important aspect to understand that how our culture ruined because that was part of the British colonial structure. तो हमारी जो राजनीति है जो ब्रिटिश की तरीके से पॉलिटिक्स को शुरू किए, so that was a negative conditions to our culture. So DP believed that यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है एक इमिटेशन हो रही है, जो हमारी कल्चर को हम ब्रिटिश के माध्यम ब्रिटिश की तरीका हम लोग उसको इमिटेट करते हैं. तो इस माध्यम से लग रहा था जैसे हमारी जो कल्चर है वो ब्रिटिश के माध्यम से हमारी कल्चर एक परिवर्तन हो जाएगा, फिर एक कल्चरल इंपेरियलिज्म की तरह रिफ्लेक्ट होगा. सो दैट मीन्स हाउ वी आर convinced and influenced by the British culture or the colonial culture. So that's why DP feared that there could be cultural imperialism. Then, when he talked about the dialectics of tradition and modernity, he also understood that how the idea of values has a relationship with the lifestyles, emotions of both male and female or men and women. So that means यहाँ पे गुड और बैड को समझने के लिए इट हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज के माध्यम से हमारी सोसाइटी को अगर देखें व्हिच इज गुड एंड बैड, it cannot be looked from the colonial idea of culture or colonial structure. Rather, we have to understand
that Indian tradition is important there to understand what is the life habits and emotions both for male or female. Then the idea of Indian tradition is also understood from technology, democracy, urbanization, bureaucracy. ये जो चारों पॉइंट की बात करते हैं, all are the product of the British colonial force. एंड ये सारे हमारे ट्रेडिशंस को प्रभावित किया है. डीपी मुखर्जी claims that all these process of technology, democracy and urbanization, bureaucracy all became important forces to uh, influence the Indian traditions. So that means हमारे पास जो एक strong tradition culture था, जो हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ था, इस परंपरा को परिवर्तन के लिए जो चार ब्रिटिश फोर्स, ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर की जो देन है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, डेमोक्रेसी या जो लोकतंत्र या अर्बनाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे चीज हमारी ट्रेडिशंस को परिवर्तन करने में कुछ सक्षम रहा. So that means the idea of D.P. Mukherjee wanted to focusing that how the Indians and Indian process Indianization, it may be vanished because of the idea of West culture or colonial structure. इसलिए हम लोग primitive tribes की बात करते हैं. जब that Western culture अगर इसके ऊपर प्रभाव पड़ता, पूरी तरह प्रिमिटिव ट्राइब्स की जो कंसेप्ट है इंडियन सोसाइटी और इंडिजिनस कम्युनिटी के माध्यम से, ये भी चेंज हो जाता अगर उनके ऊपर भी उस लेवल का टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी अर्बनाइजेशन, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा तक प्रभाव डालता. So that means they have sufficient flexibility for that Indian culture has assimilated Indian tribal culture and many of its endogenous descents. तो इसका मतलब ये हुआ जो भारतीय संस्कृति फ्लेक्सिबल था, बट इस जगह पे ट्राइबल कल्चर को थोड़ी सी उसमें एक अंतर या डिफरेंस नजर आता है. दे वर नॉट 100% influenced by the British culture. So यहाँ पे जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस जितने मैग्नीट्यूड में इंडियन ट्राइबल कल्चर के साथ जुड़ा हुआ था, उतना ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर उतना प्रभाव नहीं डाल पाया जितना मेन स्ट्रीम को या इंडियन मिडिल क्लास को हम देखते हैं ब्रिटिश की इम्पैक्ट. D.P. Mukherjee also giving the idea that how the Hindu-Muslim cultures has a relationship with the understanding of the Indian traditions. अगर आप भारतीय समाज को, हिंदू मुस्लिम कल्चर को देखते हैं, तो यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखते हैं, दैट इज इट हैज ए रिलेशनशिप विद वर्ण संस्कार. तो यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम की कल्चर है, वो वेस्ट की तरह नहीं है, या जो मुस्लिम कल्चर है वो भारतीय परंपरा के साथ जुड़ा हुआ, डिस्पाइट देयर टू डिफरेंट religious community, but it has a similar Indian tradition, so that becomes the part of the important way to understand the Hindu-Muslim culture of India. DP doesn't worship the tradition, but the idea of complete man or well-balanced personality is about the blend of the moral flavor as well as intellectual sensitivities. तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यूज है उसके साथ एक इंटेलेक्चुअल सेंसिटिविटीज के साथ, हिस्ट्री के साथ एक रेशनैलिटी. सो इट इज नॉट कंप्लीटली only a tradition, but it has a sense of moral flavor, or it has a sense of history and rationality. It is also having a intellectual sensibility. So that means जब हम complete man अकॉर्डिंग टू डीपी मुखर्जी और वेल बैलेंस पर्सनालिटी की बात करते हैं, तब हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल सेंसिबिलिटी के साथ एक वैल्यूज जो ट्रेडिशन से जुड़ा वो भी रहना चाहिए, और एक सेंस ऑफ हिस्ट्री के साथ रेशनैलिटी को भी देखने की जरूरत है. Then the qualities of the idea of the rationality has a relationship with modernity. But यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशंस को हम मॉडर्निटी के साथ एक डायलेक्टिकल वे में हम समझते हैं, दैट बोथ आर हैविंग ए डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो जब हम डीपी मुखर्जी की बात करते हैं, वो कहते हैं देयर इज ए डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. सो दैट मीन्स वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेडिशन. So there is a need to understand the tradition. So DP observes that the knowledge of tradition shows the way to break them with the least social cost. अगर हम ट्रेडिशन को सही तरीके से समझ लें, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान मीमांसा को भी समझ लें,
जब हम ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की तरफ जाएंगे, जब हम ब्रेक करेंगे उस ट्रेडिशन को, तो हमें लॉस सामाजिक जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी सामाजिक से प्रॉब्लम्स जुड़ा हुआ, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड द knowledge, the epistemology attached to the traditions. So DP rightly pointed out that how the idea of traditions, it's not negative to understand the modernity, rather it helps to reduce the social cost, to change, to break the idea of traditions towards the modernity. Then also the idea of uh, this tradition and modernity help us in understanding the authentic measuring of these two bipolar concept. जब हम उसको रूरल अर्बन या ट्रेडिशन मॉडर्न को एक बाइपोलर कंसेप्ट समझते हैं या पोलर अपोजिट समझते हैं, then it is also giving a different meaning, whereas when we have a कंटिन्यूम, रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं, वो एक अदर मीनिंग देता है, बट एक डायलेक्टिकल अप्रोच में जब हम देखते हैं, बट इट इज ऑल्सो गिविंग दैट हाउ वी कैन हैव ए बेटर मॉडर्निटी इफ यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेडिशन इन ए बेटर वे। तो यहाँ पे अगर परंपरा को हम सही तरीके से समझ लाए, तो उसमें हम मॉडर्निटी को सही तरीके से जाने की एक रास्ता समझ में आ जाता है। So that means D.P. Mukherjee argued that there is dialectical relation between India's tradition and modernity, British colonialism and Indian nationalism, the individualism and collectivity. जो कलेक्टिविटी की बात करते हैं उसका संघ की बात करते हैं। ये जो तरीके से बीटी मुखर्जी बात करते हैं इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्निटी, क्योंकि मॉडर्निटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ colonial structure and Indian tradition is about our indigenous culture. यहाँ पे दोनों बीच में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन से परिवर्तन मॉडर्निटी तक जो पहुंचने की जो तरीका है, that is also we are guided by our own tradition. When we are talking about British colonialism और उसके साथ जुड़ा हुआ नेशनलिज्म, ये दोनों चीज को अगर अगर नेशनलिज्म तरफ बढ़ना है, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। अगर हम नेशनलिज्म तरफ बढ़ना है, इफ यू वांट टू ब्रेक द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, बट बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो ये इस डायलेक्टिकल रिलेशंस के साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बात करते हैं, व्हिच हेल्प्स टू चेंज द आइडिया ऑफ कॉलोनियल टुवर्ड्स द नेशनलिज्म। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविटी, जिसको डायलेक्टिकल रिलेशंस में देखते हैं, ये दोनों एस्पेक्ट डिफरेंट। अगर आप कलेक्टिविटी की बात करेंगे, कलेक्टिव कंसाइंस की बात करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म। एक स्वतंत्रता व्यक्ति की बात हो रही है, वो भी इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है, उसके साथ किस तरीके की चीजें है जो कलेक्टिविटी को बनाने के लिए आसान हो जाएगा, जो संघ बनाने में आसान होता है। सो द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म इन वेस्ट। तो उनकी व्यक्ति का जो वैल्यूज है, उनकी जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअलिज्म। So that is where the idea of dialectics was anchored in liberal humanism. तो यहाँ पे dialectics को एक रेडिकल अप्रोच में नहीं देख रहे हैं, एक लिबरल ह्यूमनिज्म पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। He argued all through his works that traditions are central to understanding of Indian society. तो अगर आप ट्रेडिशंस को नहीं समझेंगे, तो भारतीय समाज को नहीं समझेंगे, या भारतीय समाज को परिवर्तन करने के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन भी नहीं हो सकता है जब तक we cannot understand our own tradition. So the relation between modernization which came to India during the British colonial period, so the traditions became the dialectical part, because it is from this perspective of dialectics that DP argued we should define the traditions. That why it is dialectical, because we must understand where is the traditions and how it is different from the modernization which is given by the colonial structure. जो ब्रिटिश ने हमें जो आधुनिकीकरण दिया, ये क्यों अलग है, कैसे अलग है, उससे पहले हमें जानना जरूरी है हमारे देश की ट्रेडिशंस कैसा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस।